Good evening, everyone. Welcome to Career Defense School. Today we will do Sanic School sample paper for class 6 GK section. We will do the sample paper for class 6 GK section. So the first question is, which planet is referred as morning star as well as evening star? Option A is Mars, option B is Venus, option C is Jupiter and option D is Saturn. Yes, which planet is referred morning star as well as evening star? तो बेसिकली पहले आपको ये पता होना चाहिए देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. तो फर्स्ट इज दी मरकरी. First planet is Mercury. Second is the Venus. After that is Mercury, Venus, Earth. After that is Earth. उसके बाद Mars. Then Jupiter. Then Saturn and then Uranus and then Neptune. तो there are basically 8 planets और इनकी sequence आप कैसे learn कर सकते हो? My very efficient mother just served us noodles. इस तरह से आप क्या कर सकते हो? Trick. This is basically a trick to remember the sequence of the planets of the solar system. तो my very efficient mother just served us noodles. तो basically हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से planet is referred as morning star as well as evening star. तो first option is Mars, option B is Venus, option C is Jupiter and option D is Saturn. तो किसको बोला जाता है morning and evening star? That is the Venus. तो option B will be the answer. Option B will be the answer. Venus को क्या बोला जाता है? That is the morning and the evening star. Mars को क्या बोला जाता है? Mars is the red planet. रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है? मार्स को बोला जाता है. रेड प्लैनेट मार्स को बोला जाता है. Jupiter is the biggest planet of the solar system. Yes, the biggest planet of the solar system is the Jupiter. After that is Saturn. Saturn क्या है? Saturn is the planet that have ring around. जिसके अराउंड क्या है? रिंग है. तो वो Saturn क्या है? वो प्लेनेट है जिसके अराउंड क्या होती है? रिंग होती है. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था मॉर्निंग स्टार एज वेल इवनिंग स्टार. दैट इज द प्लेनेट. वीनस को बोला जाता है मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार. सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर. Now the next question is, the Indian flag was designed by. Yes, Indian flag was designed by. Indian flag was designed by. Option A is Motilal Nehru. Option B is Pingali Venkaya. Option C is Poti Siramullu. एंड ऑप्शन डी सरोजनी नायडू. यस, इंग्लिश जो हमारा इंडियन फ्लैग है दैट वाज डिजाइंड बाय ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकय. इन्होंने ये पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था? हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था. ठीक है. सरोजनी नायडू क्या है? सरोजनी नायडू इज द फर्स्ट गवर्नर. जो गवर्नर बनी थी, फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ द इंडिया इज द सरोजनी नायडू, और जिनको नाइटिंगेल भी बोला जाता है. ठीक है. तो हमसे क्या पूछा गया है? द इंडियन फ्लैग वाज डिजाइंड बाय, दैट इज द पिंगाली वेंकय वाज द पर्सन who designed our national या Indian flag. So option B will be the answer. Now the next question is, what would be the route of India's first bullet train? Yes, क्या रूट होगा इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन का? ऑप्शन ए इज मुंबई टू अहमदाबाद, ऑप्शन बी इज न्यू दिल्ली टू कानपुर, ऑप्शन सी इज बेंगलुरु टू चेन्नई एंड ऑप्शन डी इज दिल्ली टू चंडीगढ़. Yes, what would be the route of India's first bullet train? So the answer will be मुंबई टू अहमदाबाद. जो इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, उसका रूट क्या डिसाइड हुआ है? दैट इज इट विल ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद. बेसिकली क्या रूट होगा? अहमदाबाद, गुजरात और मुंबई, इन 3 प्लेसेस पे क्या होगी? ये इसका रूट होगा. तो फर्स्ट इंडियन बुलेट ट्रेन, द रूट ऑफ द फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी मुंबई टू अहमदाबाद. तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर. Now the fourth question is, where is orangutan apes found? Yes, it is a species. It is one of the species of the apes. And where it is found? Option A is Sri Lanka. Option B is Australia. Option C is Indonesia. Option D is Korea. Yes, where is orangutan apes found? Option A Sri Lanka. Option B Australia. Option C Indonesia. And option D is Korea. Yes, they are basically found in option number C. इंडोनेशिया में ये इस टाइप की स्पीसीज क्या होते हैं? फाउंड होते हैं. एप्स की स्पीसीज है ये ओरंगटन एप्स. ठीक है. और ये कहाँ फाउंड होते हैं? बेसिकली दे आर लिव्ड इन इंडोनेशिया. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट इज, वेयर इज स्मॉल कार नैनो मैन्युफैक्चर? यस, वेयर इज स्मॉल कार नैनो मैन्युफैक्चर?
यस, वेयर इज द नैनो मैन्युफैक्चर, जहाँ पे नैनो मैन्युफैक्चर की जाती है वो कंपनी कहाँ पे है, बेसिकली क्वेश्चन है ये आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी गुजरात। यस, वेयर इज स्मॉल कार नैनो मैन्युफैक्चर, नैनो इज बेसिकली अ कार and it is manufactured in Gujarat. So option D will be the answer. Yes, where is the small nano car manufactured? It will be manufactured in the Gujarat. Option D will be the answer of fifth question. Now the next question is, what is the name of Harry Potter's owl? Yes, what is the name of Harry Potter's owl? कि जो Harry Potter is a movie and that was बेसिकली किसने राइट किया, दैट इज दी जेके रोलिंग। जेके रोलिंग पर्सन है जिन्होंने क्या किया है, ये पूरी इसकी स्टोरी लिखी है बेसिकली, ठीक है, जेके रोलिंग। तो अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि किसने स्टोरी लिखी है हैरी पॉटर मूवी की, तो आंसर विल बी जेके रोलिंग। अब हमने क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द नेम ऑफ हैरी पॉटर आउल, की जो हैरी पॉटर के आउल है उसका नेम क्या है। ऑप्शन ए इज कॉलिन, ऑप्शन बी इज हेडविग, ऑप्शन सी इज डुडले एंड ऑप्शन डी रेमस। Yes, what is the name of the Harry Potter's owl? Yes, it is Hedwig. Option number B will be the answer. Hedwig is the owl of the arrow Harry Potter. Harry Potter मूवी में हैरी पॉटर के आउल का क्या नाम था, दैट इज दी हेडविग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, which region received the lowest rainfall in India? Yes, which region received the lowest rainfall in India? Option A is Leh, option B is West Rajasthan, option C is Central India and option D is Chota Nagpur. Yes, कौन सा रीजन इनमें से क्या करता है, सबसे कम रेनफॉल रिसीव करता है इंडिया में? ऑप्शन ए इज ले, ऑप्शन बी इज वेस्ट राजस्थान, ऑप्शन सी इज सेंट्रल इंडिया एंड ऑप्शन डी इज छोटा नागपुर। तो सेंट्रल इंडिया बेसिकली आपका वो एरिया है जहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वो सेंट्रल एरिया है। ले कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। एंड हमसे क्या पूछा है उसने कि कौन सी रीजन इनमें से सबसे लोवेस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, और जो छोटा नागपुर है बेसिकली जो आपका झारखंड वाला एरिया है वहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यूज में। तो जो सबसे लोवेस्ट रेनफॉल रिसीव होती है इन द वेस्ट राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। जो वेस्ट राजस्थान है वहां पे सबसे कम रेनफॉल होती है। So option number B will be the answer of the seventh question. Now the next question is, which is the longest day of the northern hemisphere? Yes, which is the longest day of the northern hemisphere? सबसे longest day कौन सा है northern hemisphere का? First option is 22nd December, option B is 21st March, option C is 23rd September and option D is 21st of June. Yes, longest day उसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टाइस भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो बेसिकली क्या है, 20 जून है, 21 जून, ठीक है, 21st जून विल बी द आंसर ऑफ द 8th क्वेश्चन। तो अगर जब यहाँ पे क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, हमसे लॉन्गेस्ट डे पूछा गया है, तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द 21st ऑफ द जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Fine. Now the next question is, who is popularly known as Saint of the Gutters? Yes, who is popularly known as Saint of the Gutters? Option A is Gladwin Jones, option B is Mother Teresa, option C is Saint John and option D is none of the above. Yes, जो popularly Saint, yes, Mother Teresa जिनको क्या बोला जाता है, Saint of Gutters भी बोला जाता है। So option number B will be the answer of the 9th question. Yes, Mother Teresa is known as the Saint of the Gutters. Now the next question is, who wrote the book Train to Pakistan? Yes, who wrote the book Train to Pakistan? Yes, option A is Amitabh Ghosh, option B is Khushwant Singh, option C is Raja Rao and option D is Baji Rao. Yes, option A is Amitabh Ghosh, option B is Khushwant Singh, option C is Raja Rao, option D is Baji Rao. So Train to Pakistan is a book that was written by the Khushwant Singh. So option number B will be the answer. अमिताभ घोष की जैसी इंपॉर्टेंट बुक है द शैडो लाइन्स, पूछा जाता है कि शैडो लाइन बुक किसने लिखी है, दैट इज रिटन बाय द अमिताभ घोष। ठीक है, द शैडो लाइन्स is the book, important book that was written by the Amitabh Ghosh.
हमसे क्या पूछा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखी है? दैट इज रिटन बाय दी खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह इज द पर्सन दैट राइट द book Train to Pakistan. Now the next question is, 11th question. A method of painting with natural dyes on cotton or silk cloth with bamboo stick. हाँ जी, a natural method of painting with natural dyes on cotton or silk cloth with bamboo stick. Option A is Bandhani, option B is Chikankari, option C is Madhubani, and option D is Kalamkari. So answer will be jo kalamkari, option number D will be the answer. Kalamkari is the painting that is done on the cotton cloth by the bamboo stick. तो बेसिकली ये कहाँ पे की जाती है? बेसिकली इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स हैं जहाँ पे इस टाइप की पेंटिंग्स होती हैं. इस टाइप की पेंटिंग्स की साड़ीज भी मिलती हैं, इस टाइप की पेंटिंग्स के दुपट्टे भी मिलते हैं. तो ये सब कहाँ पे होता है? बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, जब क्या करते हैं कॉटन पे या सिल्क कपड़े पे बैंबू स्टिक से क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, पेंटिंग करते हैं. दैट इज भी, इसको हम क्या बोलते हैं? कलमकारी बोलते हैं. और कहाँ कहाँ होती है? इट इज इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज इंडियन स्टेट जो जहाँ पे होती है दैट इज द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर. चिकनकारी के लिए कौन सी स्टेट फेमस है? दैट इज द लखनऊ. लखनऊ इज फेमस फॉर द चिकनकारी. ठीक है, कलमकारी के लिए फेमस स्टेट्स कौन सी होगी? हमारी आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना. Now the next question is, who founded the kingdom of Vijayanagar Empire? Yes, who founded the kingdom of Vijayanagar Empire? Option A is Adil Shah, option B is Mir Qasim, option C is Hariyar and Bukka, and option D is Ahmad Shah. इनमें से कौन से पर्सन थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था? ऑप्शन ए इज आदिल शाह, ऑप्शन बी इज मीर कासिम, ऑप्शन सी इज हरिहर बुक्का, एंड ऑप्शन डी इज अहमद शाह. So Vijayanagar kingdom was founded by Hariyar and Bukka. So option number C will be the answer of the 12th question. Now the next question is, yes, whom did Germany defeat in the finals of 2014 Football World Cup? Yes, जर्मनी ने किसको डिफीट किया था फाइनल्स में 2014 वर्ल्ड कप की? तो हम पता चल रहा है बेसिकली द विनर ऑफ द 2014 वर्ल्ड कप दैट इज द जर्मनी. तो अब हमसे उन्होंने ये पूछ लिया कि उन्होंने डिफीट किसको किया था या सेकंड रनर अप कौन थी? ऑप्शन ए इज स्पेन, ऑप्शन बी इज नीदरलैंड, ऑप्शन सी इज अर्जेंटीना, ऑप्शन डी इज फ्रांस. यस, व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन ए इज स्पेन, ऑप्शन बी इज नीदरलैंड, ऑप्शन सी इज अर्जेंटीना, ऑप्शन डी इज दी फ्रांस. यस, तो जर्मनी डिफीटेड इन फाइनल दैट इज दी अर्जेंटीना. अर्जेंटीना को डिफीट किया था 2014 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में जर्मनी ने. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, now the next question is, who become the youngest girl to set foot on Mount Everest in May 2014? Yes, who become the youngest girl to set foot on Mount Everest in May 2014? Yes, Mount Everest is the peak, highest peak. ठीक है, और कहाँ पे है? इट इज इन नेपाल. कहाँ पे है? नेपाल में है. तो सबसे यंगेस्ट गर्ल कौन सी बनी थी जिन्होंने फुट किया था ऑन द माउंट एवरेस्ट मई 2014 में? ऑप्शन ए इज दृष्टि रॉय, ऑप्शन बी इज मैरी कॉम, ऑप्शन सी इज कल्पना, एंड ऑप्शन डी इज मालवत पूर्णा. बेसिकली इट इज मालवत पूर्णा. So what will be the answer? Yes, मालवत पूर्णा इज द यंगेस्ट गर्ल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फुट रखा था अपना ऑन द 2014, मतलब माउंट एवरेस्ट पे पीक पे पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची थी. दैट इज दी मालवत पूर्णा. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ द 14th क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, who has hit the fastest century in one day international cricket match? Yes, who has hit the fastest century in one day international cricket match? Option A is Sachin Tendulkar, option B is AB de Villiers, and option C is Shahid Afridi, and option D is Jay Surya. Option A is Sachin Tendulkar, option B is
A. B. de Villiers, option C. Shahid Afridi, and option D is Jayasuriya. So who has hit the first century in one-day international cricket match? That is the A. B. de Villiers. Option number B will be the answer, and he is from basically a batsman from the South Africa. He is from the South Africa. A. B. de Villiers, जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी ली थी in the international cricket match. So option number B will be the answer. Now the next question is, which gas is more in the mixture of CNG? Yes, what is the full form of CNG? That is the compressed natural gas. ठीक है, it is a compressed natural gas and it is basically ये सबसे कम pollution क्या करती है, जनरेट करती है. क्यों? क्योंकि सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. अगर पेट्रोलियम डीजल से कंपेयर करेंगे तो जो सीएनजी है आपकी कम पोल्यूशन क्रिएट करती है. क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करेगी. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगी तो उतना ही पोल्यूशन कम होगा. तो कौन सी, विच गैस इज मोर इन द मिक्सचर? जो सीएनजी का मिक्सचर होता है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए इज मीथेन, ऑप्शन बी इज बुटेन, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी इज इथिलाइन. यस, इट इज द मीथेन. जो मीथेन सबसे ज्यादा होती है आपकी सीएनजी गैस के मिक्सचर में. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ द 16th क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कैपिटल ऑफ सीरिया. यस, हमसे क्या पूछा है कि कैपिटल पूछी है किसकी? सीरिया की. ऑप्शन ए इज डेमस्कस, ऑप्शन बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी इज कायरो एंड ऑप्शन डी इज एडिस अबाबा. यस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया? कैपिटल ऑफ सीरिया इज दमस्कस. दमस्कस इज द कैपिटल ऑफ द सीरिया. ठीक है. दिल्ली इज द प्लेस ऑफ द ईस्ट टिमोर. ईस्ट टिमोर की प्लेस है दिल्ली. ठीक है. ये इंडिया वाली दिल्ली नहीं है, ये है ईस्ट टिमोर में एक प्लेस है वहां पे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज कायरो. कायरो इज द कैपिटल ऑफ द इजिप्ट. कायरो इज द कैपिटल ऑफ द इजिप्ट. इजिप्ट की कैपिटल है कायरो. ठीक है. एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ द इथियोपिया. एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ द इथियोपिया. एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ द इथियोपिया. ठीक है. तो हमसे क्या पूछी गई है? कैपिटल ऑफ सीरिया इज दी डेमस्कस. डेमस्कस इज द कैपिटल ऑफ द सीरिया. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट फ्रीडम फॉर फियर? यस, हु रोट फ्रीडम फॉर फियर? फ्रीडम फॉर फियर इज अ बुक that was written by whom? Option A is Arundhati Roy, option B is Aung San Suu Kyi, option C is Chetan Bhagat and option D is Amrita Pritam. Yes, basically जो अरुंधति राय की important book है, that is the God of Small Things. God of Small Things is a book that was written by the Arundhati Roy. God of Small Things. And the next is Chetan Bhagat. Chetan Bhagat की different books हैं and important books हैं. That is the two states, Revolution 2020. So these are the books that was written by the Chetan Bhagat. And The Skeleton and the Man. The Skeleton and the Man is the book that was written by the Amrita Pritam. So ये सभी नॉवलिस्ट हैं, पर जो फ्रीडम और फ्रॉम फियर बुक है, that was written by Aung San Suu Kyi is the person that wrote the book, that is the Freedom for Fear. So option number B will be the answer of the 18th question. Now the next question is, where is Nagar Hole National Park located? Yes, Nagar Hole National Park is located in option A is Kerala, option B is Maharashtra, option C is Assam and option D is Karnataka. Yes, where is Nagar Hole National Park located? Option A is Kerala, option B is Maharashtra, option C is Assam and option D is Karnataka. Yes, Nagar Hole National Park is basically located in the Karnataka. Karnataka में है आपका Nagar Hole National Park. Now असम के important national park जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, that is the Manas National Park. Manas National Park. Second is the Kaziranga National Park. These are the important national park of the असम जो पूछे जाते हैं पेपर में, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दी मानस नेशनल पार्क. केरला का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, दैट इज दी परिहार नेशनल पार्क. परिहार नेशनल पार्क इज इन दी केरला. एंड महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज दी संजय गांधी नेशनल पार्क. संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र. केरला का दैट इज दी परिहार नेशनल पार्क. असम का दैट इज दी मानस नेशनल पार्क एंड दी
काजीरंगा नेशनल पार्क। और एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया नागरहोल नेशनल पार्क एंड इट इज लोकेटेड इन दी कर्नाटका। कहाँ पे लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। फाइन। After that is the Salal project is on which river? Yes, the Salal project is on which river? Option A is Chenab, option B is Jhelum, option C is Ravi and option D is Satluj. जो सलाल प्रोजेक्ट है या सलाल डैम भी कह सकते हैं, वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है? ऑप्शन ए इज चेनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी इज रावी एंड ऑप्शन डी सतलुज। यस, जो सलाल प्रोजेक्ट है इट इज ऑन दी चेनाब रिवर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। चेनाब के सलाल प्रोजेक्ट के अलावा जो चेनाब में बना हुआ एक बगलीहार प्रोजेक्ट, बगलीहार डैम बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है, वो भी कौन सी रिवर पे है? चेनाब रिवर पे है। सतलुज रिवर का इंपॉर्टेंट डैम है दैट इज दी भाखड़ा नग्गर डैम। Yes, भाखड़ा नग्गर डैम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डैम जिसको क्या बोला जाता है? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इज दी भाखड़ा नग्गर डैम एंड इट इज ऑन दी सतलुज रिवर। कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश में है। एंड सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन दी रिवर चेनाब। चेनाब रिवर पे है सलाल प्रोजेक्ट। So option number A will be the answer. Now the next question is, when is the World Humanitarian Day celebrated? Yes, when is the World Humanitarian Day is celebrated? Option A is 19 August, option B is 11th May, option C is 1st July and option D is 11th July. Yes, World Humanitarian Day is celebrated on, it is celebrated on the 19th of August. 19th of August को क्या celebrate किया जाता है? World Humanitarian Day. Yes, अब देख लेते हैं 11 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। यस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 11th ऑफ मई। 1 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज द डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज द डॉक्टर्स डे एंड 11th ऑफ जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है आपका 11 जुलाई को। 1st ऑफ जुलाई इज एज द डॉक्टर्स डे। 11 मई को क्या है? दैट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दी 19th ऑफ अगस्त। तो 21 का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा? यस, कौन सा टेम्पल है इंडिया का जिसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है? तो ऑप्शन ए इज सन टेम्पल कोणार्क, ऑप्शन बी इज बृहदेश्वरी टेम्पल तिंजोर, ऑप्शन सी सोमनाथ टेम्पल गुजरात एंड ऑप्शन D is Meenakshi Temple, Madurai. Yes. Yes, which among the following temple is known as the Black Pagoda? Option A, Sun Temple, Konark. Option B, Brideshwar Temple, Tanjore. Option C, Somnath Temple, Gujarat. And option D, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। तो जो ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसको बोला जाता है? सन टेम्पल कोणार्क को ही क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी बोला जाता है। और जैसे कि पता भी है सन टेम्पल हमारे कौन से नोट के पीछे है? यस, सन टेम्पल किसके नोट पे प्रिंटेड है? कौन से नोट पे प्रिंटेड है इंडिया की करेंसी के? दैट इज द 10 रुपए का नोट। 10 रुपीज नोट के ऊपर क्या है प्रिंटेड? दैट इज द सन टेम्पल कोणार्क। सो ऑप्शन नंबर ब्लैक पगोड़ा किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ द 22nd क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022? यस, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022? ऑप्शन ए इज कतर, ऑप्शन बी इज न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इज कनाडा एंड ऑप्शन डी इज इंग्लैंड। Yes, which country will host the FIFA World Cup in 2022? Option A is Qatar, option B is New Zealand, option C is Canada and option D is England. Yes, FIFA World Cup in 2022 that will be hosted by the Qatar. So option number A will be the answer of the 23rd question. FIFA World Cup in 2022 will be hosted by the Qatar. Option A will be the answer of the 23rd question. Now the next question is, what is the name of the atmospheric layer closest to Earth? Yes, what is the name of the atmospheric layer closer to Earth? First is photosphere, option B stratosphere, option C is troposphere and option D is atmosphere. Yes, which is the name of the atmospheric layer that is closest to Earth? जो सबसे close है Earth के। तो बेसिकली देखो हमारी क्या होती है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, ये होती है थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। तो बेसिकली 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज द स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज द मेसोस्फियर,
फोर्थ इज द थर्मोस्फियर एंड द सबसे टॉपेस्ट कौन सी होती है हमारी एक्सोस्फियर की। तो अर्थ क्या है, यहाँ अर्थ है, तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सी होगी, अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट कौन सी होगी, दैट इज द ट्रोपोस्फियर। तो आंसर नंबर सी विल बी द आंसर ऑफ द 24th क्वेश्चन। स्ट्रेटोस्फियर आपकी ऐसी लेयर है जिस जहाँ पे क्या है, ओजोन, ओजोन लाई करती है। ओजोन लेयर कौन सी लेयर में लाई करती है एटमोस्फेयर की, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन लेयर लाई करती है। सो ऑप्शन 24 का ऑप्शन क्या है, सी विल बी द आंसर ऑफ द 24th क्वेश्चन। तो फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूजफुल इन द फील्ड ऑफ, यस ऑप्टिकल फाइबर्स कौन सी फील्ड में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी इज ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी इज टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी इज एग्रीकल्चर। यस ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, ऑप्शन ए इज स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी इज ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी इज टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी इज एग्रीकल्चर। हाँ, जो ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, बेसिकली आर द वायर्स दैट जो हमारी कनेक्ट करती हैं, जो आपकी केबल वगैरह की वायर्स होती है, उसमें उसमें कौन सी वायर्स यूज करती है, दैट इज दी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो आंसर विल बी टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूजफुल इन द फील्ड ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। So 25 का आंसर will be option number C will be the answer of the 25th question. So class, these are the questions of the sample paper Sainik School for class 6. Okay, thank you and all the best. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।